نئے سال کے موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند کی جانب سے پارٹیوں کا اہتمام کرنے والے منتظمین کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس نے منتظمین سے کہا کہ وہ جشن کے دوران عریانیت کے فروغ کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اگر ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ریسٹورنٹس، پبس کے انتظامیہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ سرویلنس کیمرے کے ذریعے پارٹی میں شرکت کرنے والوں پر نظر رکھی جائے گی، خان کی سیکورٹی کا انتظام کیا جائے اور پارکنگ کے معاملے میں بھی کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ BRS پارٹی اقتدار کے مقصد سے نہیں بلکہ ملک کی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ ملک میں پھیلی ہندو مسلم نفرت کو محبت میں تبدیل کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنی سرکاری قیامگاہ واقع بنجارہ ہلز میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے BJP اور کانگریس کے کارکنوں سے یہ بات کہی۔ BRS قائد محمد عقیل کی قیادت میں مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر کے BJP اور کانگریس کے 20 کارکنوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی سرکاری قیامگاہ پر BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ وزیر موصوف نے تمام پارٹی کارکنوں کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی کے ہر حلقے میں کافی ترقی ہو رہی ہے کیونکہ BRS قائدین اور کارکنان اپنے فرائض کو بہتر طور پر انجام دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 2014 میں مرکز میں BJP اور تلنگانہ ریاست میں TRS پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ ان 8 سالوں میں تلنگانہ نے مجموعی طور پر غیر معمولی ترقی حاصل کی جبکہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی شبیہ دنیا بھر میں متاثر ہوئی ہے۔ آج مہاراشٹر سے کافی لوگ تلنگانہ اسٹیٹ میں آئے اور مجھ سے بھی ملاقات کی ہے کیونکہ آنریبل CM صاحب نے TRS کو BRS کیا ہے، بھارتیہ راشٹر سمیتی پارٹی کا نام دیا ہے۔ اس کے لیے لوگ سارے ہندوستان کے لوگ BRS پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مطالب صاحب جو نادر سے آئے اور ان کی ٹیم، آپ کے بھائی صاحب شبیر صاحب اور ان کے اشفاق صاحب اور بہت سے لوگ آئے، ہمارے عتیق بھائی کے عقیل صاحب کے ملاقاتی ان کے ذریعے آئے۔ میں تمام کا ویلکم بھی کرتا ہوں۔ یقیناً ہندوستان میں اگر کوئی پارٹی ہے وہ BRS پارٹی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مہان اور مہاتما لیڈر KCR صاحب نے 14 سال جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں تلنگانہ دلایا اور آج تلنگانہ ہندوستان میں نمبر 1 اسٹیٹ کی طرح کام کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ گنگا جمنا تہذیب، لوگ اس تہذیب کے لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا لیڈر آئے جو سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ملا کر ہندوستان کی ترقی میں کام کرے۔ لوگوں میں بڑا جوش ہے اور یہ لوگ بہت بڑے پیمانے پر پارٹی میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں اور وہاں پر بھی آفس کھولنا چاہتے ہیں۔ میں ان کا ویلکم بھی کرتا ہوں اور یقیناً ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں جو ہمارے آنریبل CM صاحب نے جس طرح ڈیولپمنٹ لایا اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی۔ لوگ جو گجرات ماڈل کہتے ہیں وہ 0 ماڈل ہے ہمارے تلنگانہ کے مقابلے میں۔ CM صاحب نے 8 سال کے اندر جو ان کا ویژن تھا کہ تلنگانہ میں گھر گھر پانی پہنچایا جائے، تلنگانہ کے فارمرز کو پانی پہنچایا جائے، آج کالیشورم جو پروجیکٹ بنایا گیا اس کی مثال ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ یہاں کے جو عام ہر آدمی، چاہے وہ کسان ہو، سرکاری ملازمین ہو، عام آدمی ہو، سینئر سٹیزن ہو، اس کے لیے CM صاحب نے 200 روپے سے 2000 پینشن کیا ہے۔ سنگل وومن کو پینشن دیا جا رہا ہے، راشن میں انلمیٹڈ کھانا چاول پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ ویلفیئر اسکیم اتنے ہیں، یہ لوگ ویلفیئر اسکیم دیکھ کر یہاں تک آئے، میں ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ ضرور ہماری پارٹی میں دعوت بھی دیتا ہوں، آپ ضرور شامل ہوئے۔ میں خود نادر آؤں گا، بہت بڑے پیمانے پر ایک آفس بھی کھولا جائے گا اور آپ کا جو آپ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان سب کو ہماری پارٹی میں شامل کیا جائے گا اور اس پارٹی سے یقیناً ہندوستان ایک دوسری بدلی ہوئی شکل میں نظر آئے گا لوگوں کو۔ BRS پاور میں آنے کے بعد جس طرح تلنگانہ جو آج سے جو 8 سال پہلے لوگ تلنگانہ کو دیکھتے ہیں، آج وہ بولتے ہیں کہ پہلا تلنگانہ میں اور آج کے تلنگانہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ڈیفینیٹ میں سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم بھی کرتا ہوں۔ ہمارے عقیل صاحب کا بھی شکریہ ہے۔ نلگونڈا میں حالت نشے میں BRS لیڈر ناگیشور راؤ نے ہلچل مچا دی۔ رامالنگا گوڑم سے تعلق رکھنے والے راؤ نے حالت نشے میں گاڑی چلائی۔ رات میں ان کی کار بارات سے ٹکرا گئی جس میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ کار میں شراب کی بوتلوں کی بھی اطلاع ملی ہے۔ ریاست بھر میں 26 جنوری سے کانگریس نے یاترا کا اعلان کیا ہے۔ PCC کے صدر ریونت ریڈی نے
इस यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी की आमिला का इजलास पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर 26 जनवरी से हर गांव के आवाम से वो मुलाकात करेंगे। इस पदयात्रा का मकसद आवाम की जिंदगी और हुक्मरानी में तब्दीली लाना है। यात्रा फॉर चेंज के नाम से ये पदयात्रा शुरू की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 7 दिसंबर को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो 7 जनवरी को 3600 किलोमीटर मुसाफिर तय करने के बाद मुकम्मल होगी। बीजेपी की तकसीम की सियासत का जवाब देने और आवाम को मुत्तहद करने के मकसद के तहत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि आज के आमिला के इजलास में पार्टी को मुस्तहकम करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक तमाम अजला मुस्तखरों में पार्टी के जायज़ा इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मंडलों में इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी प्रोग्राम्स को आवाम तक पहुंचाया जाएगा। बीआरएस के रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक मकतूब रवाना करते हुए वाज़ेह किया कि वो संक्रांति के बाद पूछताछ के लिए दस्तयाब रहेंगे। उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुनशियात मामले में एक नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। आज पायलट रोहित रेड्डी ने प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से तफसीली तौर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपने पीए के जरिए ईडी के दफ्तर को ये मकतूब भेज दिया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अय्यप्पा भक्त है और संक्रांति के बाद ही पूछताछ के लिए दस्तयाब रहेंगे। बुजुर्ग सियासतदान डॉक्टर अमर रजवी साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, मौजूदा सियासी पस मंज़र में अक़लियतों की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो तालीम की तरफ तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सैकड़ों करोड़ रुपए अक़लियतों के फ़ायदे के लिए भेज रही है, मगर ये रकम इस्तेमाल नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि अहदेदार जिनकी ज़िम्मेदारी इन स्कीमात की इत्तला आवाम तक पहुँचाने की है, वो अहदेदार तासुब से काम लेते हैं। ये कि उतने % लोग पिछड़े हुए हैं, तो बीजेपी जो है कमिटेड है सबका साथ और सबका विकास करने के लिए। यही बात हमारे वज़ीर आज़म ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो हमारी दरख्वास्त है ख़ास करके मुसलमान नौजवानों से और लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दें। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कीम्स, एक बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासकर उसमें मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो पड़ा रहता है और लोगों को इत्तला भी नहीं होती। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि हम खुद, हमारे जो मुसलमान भाई है, हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं, वो उस तरह तवज्जो नहीं देते। और दूसरी वजह यह है कि जो अफसर जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन स्कीम्स की इत्तला वो जनता तक करे, आम आदमी तक करें, वो अफसर उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो तासुब से काम लेते हैं और वो स्कीम्स को जो है वो आम माइनॉरिटी को और ख़ास करके मुसलमानों तक के या तो पहुंचने नहीं देते हैं या पहुंचाते नहीं। तो ये दोनों की गलती है। गलती हमारी कम्युनिटी की भी है और गलती उस ब्यूरोक्रेसी की भी है जिसके अंदर ये स्कीम्स वहाँ जब तक कि हम अपने जो रूलिंग पार्टी है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो बीजेपी ये कह रही कि आप हमारे साथ आइए। एक ज़माना था जब कांग्रेस शुरू हुई है तो बंगाल के अंदर कोई भी एक ही आध लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर मुसलमान आए थे कांग्रेस में। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अंदर शामिल हुए वो और उन्होंने एक आह्वान किया तो मुसलमान बीजेपी में कांग्रेस में आना शुरू हुए। आज मुसलमानों की जो है ये फ़र्ज़ बनता है, हम समझते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो आएँ और अपना जो फ़र्ज़ है, अपना जो है काम वो करें। एक बात और मैं साफ करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वो वोट बैंक की तरह से अपने को इस्तेमाल करवाना छोड़ दे। वोट बैंक मुसलमान
का अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसको वोट बैंक की तरह, इसका मतलब ये कि आपकी नीयत साफ नहीं। हम बीजेपी में आपको बताना चाहते हैं कि हम वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप किसी भी पार्टी में रहना चाहें, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे बीजेपी में तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और पूरा प्रयास होगा कि जो मेन लाइन है, मेन स्ट्रीम है, उसके अंदर हम आपको लेके चले। रियासती हुकूमत 28 दिसंबर से रबी के सीज़न के लिए रैतू बंधु स्कीम के तहत अहल किसानों को 5,000 रुपये फ़ी एकड़ की रकम तकसीम करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव को हिदायत दी कि इस मामले में किसानों के बैंक खातों में 7,600 करोड़ रुपए जारी करें। किसानों के बैंक खातों में ये रकम जारी की जाएगी। सबसे पहले 1 एकड़ और इससे कम अराजी रखने वाले किसानों को ये रकम दी जाएगी। बादअज़ां मरहलावार अंदाज में ज़ायद अराजी रखने वाले किसानों को ये रकम फराहम की जाएगी। आइंदा साल जनवरी में संक्रांति से पहले ये रकम तकसीम कर दी जाएगी। रैतू बंधु स्कीम के ज़रिए हुकूमत रबी और ख़रीफ के सीज़न में 10,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से रकम की फराहमी को यकीनी बना रही है। इस स्कीम को मुल्क के ज़राअत के शुबे में इनकलाबी सरगर्मी समझा जा रहा है। इसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मुफ्त आबपाशी, बरक़ी और किसानों के इंश्योरेंस के साथ तेलंगाना में ज़रूरी सरगर्मियों के लिए किसानों के खातों में रास्त तौर पर रकम भेजने महकमे ज़राअत ने इनकलाबी इक़दामात किए हैं। BRS के रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव किसानों की तरक्की के लिए मसाई कर रहे हैं। निर्मल ज़िले के कोबेर मार्केट के दफ्तर का उन्होंने इफ्तिताह किया। उन्होंने कोबेर मंडल को मज़ीद तरक्की देने का अज़्म ज़ाहिर किया। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में विंटर उत्सव मेला जारी है। सैयद मोइन अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल ये नुमाइश सरमा में लगाई जाती है। पिछले साल की तरह इस साल भी रोबोटिक एनिमल्स में इजाफा हुआ है। 100 से ज़ायद स्टॉल्स नुमाइश में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अम्यूज़मेंट राइड के अलावा असरी झूला कोलंबस भी यहाँ रखा गया है। उन्होंने इस मेले में शिरकत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। रोज़ाना मुख्तलिफ मुकाबले भी सिलसिले में मुनक़िद किए जा रहे हैं। 3 साल के बच्चों के लिए फ्री एंट्री रखी गई है। जानते हैं मेरा नाम सैयद मोइन अली है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग विंटर उत्सव मेला 2022 सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में लेकर आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम विंटर में यहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं और इस साल भी यहाँ पर विंटर में एग्जीबिशन लगाए। लास्ट टाइम की तरह इस साल भी यहाँ पर कुछ एनिमल्स में, रोबोटिक एनिमल्स में इजाफा हुआ है और जो लास्ट टाइम लोग जो आप रोबोटिक एनिमल्स देखे थे उससे बेहतरीन रोबोटिक एनिमल्स यहाँ पर हम फिर से बनाए हैं। और यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। जैसे कि आप सबको पता है, रेडीमेड के स्टॉल्स है, गारमेंट के स्टॉल्स है, शूज़ के स्टॉल्स है, फिटनेस के स्टॉल्स है, हर्बल प्रोडक्ट के स्टॉल्स है और छोटे बच्चों के लिए गेम्स के स्टॉल्स है, टॉयज़ के स्टॉल्स है। और इसके अलावा यहाँ पे अम्यूज़मेंट राइड्स है और यहाँ पे एक लेटेस्ट झूला लेकर आया है जो कोलंबस बोलकर है और वो कोलंबस लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम यहाँ पर है कोलंबस। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ विंटर उत्सव मेला सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में विज़िट करिए और इस विंटर के मौसम में इस एग्जीबिशन का मज़ा लीजिए। क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर रहेगा और डेली यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होंगे और विनर प्राइज़ रहेगा। विनर में आपको अम्यूज़मेंट के पासेस मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार विज़िट करिए आप विंटर उत्सव मेला में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है सर? यहाँ पे देखिए 3 साल के बच्चों के लिए पूरी फ्री एंट्री है, रोबोटिक एनिमल्स में फ्री एंट्री है और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे राइड्स है, बहुत ही खूबसूरत जंपिंग राइड है, मिनी ट्रेन है, बाउंसर है और अडल्ट के लिए यहाँ पे बिग जेंट व्हील है, कोलंबस है, ब्रेक डांस है, टोरा टोरा है, ड्रैगन ट्रेन है और यहाँ पे फूड कोर्ट के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, वेज का भी है, नॉन वेज का भी है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और एग्जीबिशन में एक बार घुसने के बाद सब चीज़ की फैसिलिटी आपको? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार आप एग्जीबिशन में एंट्री हो जाएगी, आपको घूमना फिरना, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, खाना पीना पूरा कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा। वीकेंड के अलावा, वीकेंड से हट के भी आप वीकडेज में भी इस एग्जीबिशन में आइए। इसकी टाइमिंग रहेगी डेली 4 बजे से लेकर 10 बजे तक और आप रात में संडे जैसा वीकेंड रहेगा उसके दिन 11 बजे तक भी इसकी टाइमिंग रहेगी।
शहर हैदराबाद में एक और घोटाला सामने आया है। फर्जी वेबसाइट बनाते हुए मुलजिमीन ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए लोगों से वसूल किए। बादअज़ां इस धोखे का मुतासरीन को इल्म हुआ। मुलजिमीन ने क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप में सरमायाकारी करने पर 150 दिनों में 3 गुना रकम अदा करने का वादा करते हुए भारी रकम वसूल की। उन्होंने वादा किया कि इस रकम को बिटकॉइन के सिक्कों में तब्दील किया जाएगा। बादअज़ां रकम ना मिलने पर मुतासरीन ने एहतजाज किया। मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में दुर्गानगर चौराहे के करीब बड़े पैमाने पर मुतासरीन ने धरना दिया। एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने कुशाईगुड़ा के अपार्टमेंट से एक नौमौलूद लड़की को बचाकर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इस लड़की को इसके वालिदैन ने अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। यह वाक़या कुशाईगुड़ा की कमला नगर कॉलोनी में वाक़ अपार्टमेंट में पेश आया। मुक़ामी अफराद ने अपार्टमेंट के कंपाउंड में इस नौमौलूद लड़की को देखा और उसके वालिदैन की तलाश के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला के साथ ही कुशाईगुड़ा पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने वहां पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के जरिए लड़की को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बजागुंडा पुलिस ने 12 अफराद को पकड़ लिया जो गांजे की फरोख्त और इसके इस्तेमाल में मुबैना तौर पर मुलविस थे। पुलिस ने उनके पास से 1 किलो गांजा, 2 बाइक्स के अलावा नकद रकम भी जब्त कर ली। एक इत्तला पर पुलिस ने 10 ग्राहकों के साथ मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनको मुनशियात सरबराह करने वाले 2 अफराद फरार हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन वेंकटेश और साई तेजा उदय के साथ साथ लड्डू से ममनुआ अशिया की खरीदारी कर रहे थे। ये मुलजिमीन ग्राहकों को ममनुआ शे फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने एक इत्तला पर इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला महबूबनगर में 7 गाड़ियों का एक साथ तसादुम हो गया। इस हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बताया जाता है कि ये एक वैन थी। वैन के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और अचानक ब्रेक लगाने के नतीजे में पीछे से आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से मुतसादम हो गई। हादसे के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सरकारी स्कूल्स में सोलार पावर यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। रियासत भर के तमाम सरकारी स्कूल्स में सोलार यूनिट्स का क़याम अमल में लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए हुकूमत ने मुख्तस किए हैं। TS रेडको इदारे ने इस सिलसिले में टेंडर को हतमी शक्ल दे दी है और कंपनियों ने इस खुसूस में काम का भी आगाज कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।